Hello dear students. So today we will continue the topic which we had discussed in the last class, that is dynamic voltage restorer. Okay. So the basic introduction of dynamic voltage restorer we have already done. Okay. But again I would like to repeat the dynamic voltage restoration. Okay. So just for the quick revision, the DVR, dynamic voltage restorer, can inject a voltage, okay, a fundamental frequency voltage in each phase of the required magnitude and phase. Okay, so DVR has two operating modes, one is standby, another one boost. Okay, so standby was, it is also termed as short circuit operation, where the voltage the injected voltage has zero magnitude, and the boost mode, okay, where the DVR injects a required voltage of appropriate magnitude and phase to restore the pre-fault load bus voltage. Okay, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जस्ट फॉर द रिकॉलिंग. ओके, और ये स्कीमेटिक डायग्राम है डायनेमिक वोल्टेज रिस्टोरर. ओके, सो नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड. So the energy storage part. So we have a different things, okay, in the DVR. So now we will discuss the energy storage part. So this is required. Why energy storage is required? इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? This is required to provide active power to the load during deep voltage sags. Okay, तो जब बहुत ज़्यादा voltage sag होता है, sag means voltage का dip होना. Okay, so जब बहुत ज़्यादा voltage sag होता है तो उस टाइम पर एक्टिव पावर की जरूरत पड़ती है. ओके, लोड को, उस वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए. एंड दिस एनर्जी स्टोरेज इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस. तो एनर्जी स्टोरेज के लिए हम लीड एसिड बैटरीज, फ्लाईव्हील, एसएमईएस, इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड पावर ऑन द डीसी साइड ऑफ द voltage source converter by auxiliary bridge converter that is fed from auxiliary AC supply. Okay, तो एक एडिशनल AC सप्लाई हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो दैट वी कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड पावर ऑन द DC साइड ऑफ VSC. तो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर के DC साइड पर अगर हमें रिक्वायर्ड पावर की जरूरत है तो वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? कन्वर्टर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सिलरी AC सप्लाई से. ओके, next is control strategy. So what is the control strategy? So there are three basic control strategies that is being followed. Okay, so first is pre-sag compensation, second is in phase compensation, and third is minimum energy compensation. Okay, so what is pre-sag compensation? अगर हम pre-sag compensation की बात करें तो pre-sag compensation क्या है? The supply voltage is continuously tracked and load voltage is compensated to the pre-sag condition. Okay, तो जो आपका सप्लाई वोल्टेज है उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और जो लोड वोल्टेज है उसको हम प्री सैग कंडीशन के लिए कॉम्पेंसेट करते हैं. ओके, सो इस मेथड से क्या होता है? दिस मेथड रिजल्ट्स इन अनडिस्टर्ब्ड लोड वोल्टेज बट जनरली रिक्वायर्स हायर रेटिंग ऑफ द DVR. ओके, सो बाय फॉलोइंग दिस मेथड और अडॉप्टिंग दिस मेथड रिजल्ट्स इन अनडिस्टर्ब्ड लोड वोल्टेज. ओके, सो इससे जो लोड वोल्टेज में जो डिस्टर्बेंस है उसको हम काफी हद तक कम कर पाते हैं, बिकॉज वी एक्चुअली कंटिन्यूअसली ट्रैक इट. ओके, एंड wherever required we provide the compensation also. That's why जो लोड वोल्टेज है वो अनडिस्टर्ब्ड होता है. ओके, एंड इसके के लिए हायर रेटिंग ऑफ DVR की जरूरत पड़ती है. ओके, बट सैग होने से पहले की जो कंडीशन है, मतलब प्री सैग कंडीशन, तो बिफोर द सैग अकर्स VS इक्वल टू VL इक्वल टू V0. ओके, ये सारे वोल्टेज बराबर है बिकॉज अभी सैग नहीं हुआ है, सैग के occurrence से पहले. So the voltage sag results in drop in the magnitude of the supply voltage to VS1. Okay, so अगर voltage sag occurrence होता है, मतलब voltage में dip होता है, तो उसके कारण supply voltage का जो magnitude है वो VS1 हो जाएगा. ठीक, the phase angle of the supply will also shift. Okay, we can see the phasor diagram. Injected voltage by the DVR. Okay, so phase angle of the supply will also shift. Okay, so phase angle भी shifting हो गया. The DVR injects a voltage VC1. अब इसको compensate करने के लिए DVR ने कितना वोल्टेज इंजेक्ट किया? यहाँ पर VC1 वोल्टेज को इंजेक्ट किया. ओके, अब जो लोड वोल्टेज है VL. ओके, so VL equal to what? VS1, the phasor sum of VS1 and plus this additional voltage VC1 provided by DVR. Okay, so this VL equal to VS1 plus VC1. Okay,
remains at V0 और ये equal to V0 होगा because both in magnitude and in phase. So it is claimed that some loads are sensitive to phase jumps and it is necessary to compensate for both phase jumps and voltage sags. Okay, तो कुछ ऐसे sensitive loads होते हैं जिसमें कि phase का जो jump है या disturbance है वो वहाँ पर observe किया जाता है. So हमें दोनों को compensation provide करने की जरूरत है. We need to provide the compensation for phase jumps also as well as voltage sag also. ठीक है, तो we need to take care of both the things. Okay. Now what is in phase compensation? That was what we discussed now was the pre-phase compensation, pre-sag compensation, sorry. Now we will discuss in phase compensation, the second type. So voltage injected by the DVR is always in phase with the supply voltage, okay, regardless of the load current and pre-sag voltage. Okay, so pre-sag voltage कुछ भी हो या load current भी anything कुछ भी हो, जो DVR के द्वारा जो वोल्टेज इंजेक्ट किया जाता है उसका फेज दैट इज इन ऑलवेज इन फेज विद द सप्लाई वोल्टेज, वो सप्लाई वोल्टेज के फेज में ही होता है. ओके, सो दिस कंट्रोल स्ट्रेटजी रिजल्ट्स इन मिनिमम वैल्यू ऑफ द इंजेक्टेड वोल्टेज. ओके, एंड हाउएवर द फेज ऑफ द लोड वोल्टेज इज डिस्टर्ब. ठीक है, इस कंट्रोल स्ट्रेटजी से हम इंजेक्टेड वोल्टेज की तो मिनिमम वैल्यू अचीव कर लेते हैं. ओके, मींस वी हैव टू इंजेक्ट अ वेरी मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, बट फेज जो है लोड वोल्टेज का वो डिस्टर्ब हो जाता है. फॉर लोड्स व्हिच आर नॉट सेंसिटिव टू फेज जंप दिस कंट्रोल स्ट्रेटजी रिजल्ट्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. ओके, तो जो लोड्स फेज जंप्स के रिगार्डिंग या रेफरेंस में सेंसिटिव नहीं होते हैं उसके लिए ये कंट्रोल स्ट्रेटजी बिल्कुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डीवीआर अचीव होता है. ठीक है, so the power requirement for the DVR are not zero for this strategy. Okay, so it is not zero for this strategy. You need some power requirement. Third is minimum energy compensation. Okay, so what is minimum energy compensation? So neglecting losses, the power requirement of the DVR are zero if the injected voltage is in quadrature with the load current. Okay, तो अगर हम losses को neglect कर दें तो जो DVR की जो power requirement है, okay, वो जीरो होती है अगर जो इंजेक्टेड वोल्टेज VC है वो लोड करंट के क्वाड्रेचर में होगा, मींस 90 डिग्री फेज शिफ्ट. ओके, सो टू रेज द वोल्टेज एट द लोड बस द वोल्टेज इंजेक्टेड बाय द DVR इज कैपेसिटिव एंड VL लीड्स VS1. ओके, सो वी विल सी दिस इन द अनदर फेजर डायग्राम. सो हियर वी कैन सी दिस. ओके, हाउ इट इज इन क्वाड्रेचर. ओके, सो the injected voltage VC is in quadrature with the load current. Okay, so injected voltage VC is in quadrature with the load current, this IL. And to raise the voltage at the load bus, the voltage injected by the DVR is capacitive and VL leads VS. Okay, so here also you can see that VL leads the VC1, VS1. Okay, so the phasor diagram shows that the in phase compensation for comparison and the current phasor is determined by the load bus voltage phasor and the power factor of the load. Okay, so current phasor जो है वो किसके द्वारा determine करते हैं हम? load bus voltage phasor के द्वारा. If you have the load bus voltage phasor and power factor, so you can easily get this current phasor. Okay, so that is obvious. Now let us discuss the control and protection. So control and protection of a DVR designed to compensate the voltage sags must consider the following functional requirements. Okay, so अगर हम DVR की डायनामिक वोल्टेज रिस्टोरर की कंट्रोल और प्रोटेक्शन की बात करें, ओके, सो दैट इज डिजाइन टू कॉम्पेंसेट द वोल्टेज सैग्स, है ना, और दैट हैज टू कंसीडर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. तो कुछ उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है which has to be considered. Okay, so when the supply voltage is normal, the DVR operates in a standby mode with zero voltage injection. जैसा कि हमने दो मोड डिस्कस किया था, एक मोड था स्टैंड बाय मोड, दूसरा मोड था बूस्ट मोड. तो जब सप्लाई वोल्टेज नॉर्मल है, ओके, जब कोई सैग या ऐसी कोई कंडीशन नहीं हुई है, वोल्टेज डिप नहीं हुआ है, ओके, तो DVR कैसे ऑपरेट करेगा? DVR विल ऑपरेट इन स्टैंड बाय मोड. ओके, और उस मोड में जीरो वोल्टेज इंजेक्शन होगा. ठीक है. However, if the energy storage device, say battery, is to be charged, okay, then the DVR can operate in self-charging control. Okay, so
अगर हम एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस का यानी से बैटरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट हैज टू बी चार्ज, उसको चार्ज करना पड़ेगा एंड देन जो डीवीआर का ऑपरेशन होगा वो सेल्फ चार्जिंग कंट्रोल मोड में होगा। ओके, सो डीवीआर विल ऑपरेट in order to charge the batteries. The DVR will operate in self charging control mode. Okay. Second condition क्या है कि when functional requirement क्या है second कि when a voltage sag or swell occurs. Okay, so जब भी ऐसा होगा कि voltage sag हुआ या swell हुआ. What is sag? Sag means dip in the voltage and swell means rise in the voltage. Okay, so जब भी voltage sag या swell होगा तो DVR needs to inject 3 single phase voltages in synchronism with the supply in a very short time. तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर DVR को 3 सिंगल फेज वोल्टेजेस जो कि आपस में सिंक्रोनिज्म में होंगे सप्लाई के साथ, वो इंजेक्ट करने होंगे। ओके, एंड ईच फेज ऑफ द इंजेक्टेड वोल्टेज कैन बी कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली इन मैग्नीट्यूड एंड फेज। बिकॉज हमने 3 सिंगल फेज वोल्टेजेस इंजेक्ट किए हैं, सो वी नीड टू कंट्रोल each phase of the injected voltage independently. Okay, magnitude be as well as phase. However, zero sequence voltage can be eliminated in situations where it has no effect. Okay, तो zero sequence voltage को हम eliminate कर सकते हैं जहाँ पर उसका कोई effect ना हो, in such situations where it has no effect, so there we can eliminate the zero sequence voltage. Okay, and the DVR draws active power from the energy source and supply this along with the reactive power required to the load. So DVR की एक और खासियत क्या है जो कि हमने बहुत बिगनिंग में ही एक्सप्लेन किया था कि DVR जरूरत पड़ने पर एक्टिव पावर एनर्जी सोर्स, कोई भी एनर्जी सोर्स यानी बैटरी है या कोई भी है, तो ऑब्वियसली वहां से क्या मिलेगा, एक्टिव पावर ड्रॉ कर सकता है और जैसी जरूरत होगी लोड को उसके अकॉर्डिंग एक्टिव तो दे ही सकता है, रिएक्टिव पावर भी सप्लाई कर सकता है। ओके, सो इफ sometimes the voltage dips and it is required to maintain the voltage profile, so we need to inject reactive power, so the DVR can draw active power from the energy source and it can inject the reactive power to the load. Okay, and third condition क्या है, if there is a fault on the downstream of the DVR. Okay, जहाँ पर भी DVR connected है उसके downstream में, उसके आगे अगर fault का occurrence होता है, कोई fault होता है, then the converter is bypassed temporarily using thyristor switches to protect the DVR against overcurrent. Okay, तो कन्वर्टर सर्किट को हम बाईपास कर देते हैं टेम्पोरली। ओके, मतलब जब तक फॉल्ट करंट का इफेक्ट रहेगा तब तक हम कन्वर्टर सर्किटरी को बाईपास कर देंगे थायरिस्टर स्विचेज के द्वारा by controlling this. Okay, and in that way we can protect the DVR against the overcurrents. Okay, because अगर उस overcurrent को आप अलाउ कर देंगे DVR और कन्वर्टर के थ्रू पास करने के लिए, तो क्या होगा, अगर हम उस करंट को पास कर देंगे फॉल्ट करंट को, देन इट में डैमेज द कन्वर्टर सर्किटरी एज वेल एज DVR. ओके, सो हम क्या करते हैं, उसको बाईपास कर देते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे वी प्रोटेक्ट द DVR अगेंस्ट द ओवर करंट. ओके, एंड द थ्रेशोल्ड इज डिटरमाइंड बाय द करंट रेटिंग ऑफ द DVR. ओके, सो द थ्रेशोल्ड है वो करंट रेटिंग से ही हम डिटरमाइन करते हैं. नाउ open loop controller for the DVR, we can see how the controller can be designed for the DVR open loop controller. So यहाँ पर क्या है, three phase supply voltages. Okay, उसको हम मेजर करते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंटली थ्री फेज सप्लाई वोल्टेजेस को दे आर मेजर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू DQ components. Okay, DQ means direct quadrature. Okay, so three phase to two phase conversion you might have studied. Okay, तो पाक्स ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब जो थ्री फेज टू टू फेज कन्वर्जन के लिए यूज होता है. ओके, स्टेशनरी कंपोनेंट जो एनालाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. सो DQ कंपोनेंट्स अल्फा बीटा कंपोनेंट्स के थ्रू हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, थ्री फेज को टू फेज कन्वर्जन करते हैं. ओके, सो यू कैन सी दिस ABC थ्री फेज एंड इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस अल्फा बीटा कंपोनेंट्स. ओके, सो द ट्रांसफॉर्मेशन टू DQ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड अ PLL मींस फेज लॉक लूप. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए हमें फेज लॉक लूप की जरूरत पड़ती है. ओके, जिसका कि इनपुट सप्लाई वोल्टेज होता है. दिस VSA, VSB एंड VCSC मींस थ्री सप्लाई वोल्टेजेस. ओके,
three phase voltages. The DQ components of the supply voltage are subtracted from the reference values. Okay, so PLL per you can see these are subtracted from the reference values. Okay. Load bus DQ components to give the required values of injected voltage. Okay, so यहाँ पर हमें जो DQ component है, जो injected voltage है, वो हमें मिल जाता है, ठीक है. And these are transformed to the required three phase injected voltage. Okay, और इसको हम again थ्री फेज वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं. यहाँ से DQ कंपोनेंट मिला, यहाँ पर कंट्रोलिंग हो गई, मींस जो हमने रेफरेंस दिया, ओके, एंड जो हमको यहाँ पर मिला उसको माइनस करके एरर सिग्नल यहाँ मिल जाता है. ओके, एंड देन विद द हेल्प ऑफ सम PI कंट्रोलर्स और सिमिलर टाइप ऑफ कंट्रोलर्स वी व्हाट वी डू, हम यहाँ पर अगेन अल्फा बीटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेते हैं. अगेन फिर टू फेज टू थ्री फेज, यहाँ पर क्या हुआ था, थ्री फेज से टू फेज कन्वर्जन हुआ था, और यहाँ पर टू फेज से अगेन थ्री फेज कन्वर्जन करके हम वापस वो जो वोल्टेजेज है हमें, ओके, सो इस बार ये जो वोल्टेज है ये क्या है, दिस वाज द सप्लाई वोल्टेज एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉम्पेंसेटेड वोल्टेज. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम ये कॉम्पेंसेटेड वोल्टेज यहाँ पर ऑब्टेन कर लेते हैं. So the overall design of DVR must consider the following parameters. Okay, so whenever we talk of the design, okay, so what are the parameters which should be considered while we design the DVR? Okay, so first parameter, ratings of the load and power factor. Okay, load की ratings as well as power factor that you must know. Okay, because actually these are the parameters which affect the design of DVR. Okay, that's why we can say that this is the overall design of DVR and we must consider the following parameters. Second is the voltage rating of the distribution line. जिस distribution line में आपको DVR माउंट करना है उसका voltage rating कितना है. मैक्सिमम सिंगल फेज सैग, कितना सैग अलाउेबल है. मैक्सिमम थ्री फेज सैग इन परसेंटेज, तो सिंगल फेज सैग और थ्री फेज सैग, ओके, बोथ शुड बी नोन, कितना अलाउेबल रेंज है. ड्यूरेशन ऑफ वोल्टेज सैग, कितने ड्यूरेशन के लिए वोल्टेज सैग हो सकता है और आपको DVR से compensation provide करना. Okay, and the voltage time area. Okay, so this is an indication of the energy requirement. And recovery time for the DC link voltage to 100%. So कितनी देर में कितना recovery time है जिससे कि DC link voltage जो है 100% पे maintain हो जाएगा. And last is overcurrent capability without going into bypass. Okay, so उसकी overcurrent capability कितनी है in case मान लीजिए कोई load variation हुआ या fault occurrence हुआ या माइनर डिस्टर्बेंस हुआ, तो उस केस में कितना ओवर करंट, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है ओवर करंट को फ्लो कराने की, विदाउट गोइंग इनटू बाईपास मोड. ओके, एंड टिपिकली DVR में बी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव लोड अगेंस्ट 35% ऑफ द थ्री फेज वोल्टेज सैग और 50% ऑफ द सिंगल फेज सैग. ओके, सो टिपिकली अगर DVR की बात करें तो उसको सेंसिटिव लोड्स के केस में 35% ऑफ थ्री फेज वोल्टेज सैग या 50% ऑफ सिंगल फेज वोल्टेज सैग के लिए डिजाइन किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए. ओके, एंड द ड्यूरेशन ऑफ सैग कुड बी 200 मिलीसेकंड. सो 200 मिलीसेकंड तक अगर किसी भी कारण से सैग है तो DVR उसको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कर सकता है. ओके, एंड द DVR कैन कॉम्पेंसेट हायर वोल्टेज सैग्स लास्टिंग फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन और अलाउ लॉन्गर ड्यूरेशन. तो अगर वोल्टेज ज्यादा है, मींस हाई वोल्टेज की बात करें, तो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए सैग को कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कर पाएगा, और अगर वोल्टेज जो है वो कम है तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सैग प्रोवाइड कर पाएगा. ओके, सो द रेस्पॉन्स टाइम कुड बी एज स्मॉल एज 1 मिलीसेकंड. जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम जो है 1 मिलीसेकंड वो हो सकता है.